नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौवागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोनि मङ्गलं कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाताय। કળશ ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં 9મો કળશ એટલે કે સળંગ કળશ 201નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. આ કળશ એને સમયસારમાંથી તેમજ કળશ અમૃતમાંથી આપણે વાંચનમાં લીધો અને તે પછીથી પૂજ્ય ગુરુદેવ કાજી સ્વામીએ આ કળશ ઉપર વિસ્તાર કર્યો. એનો ઘણો ભાગ આપણે કર્યો છે. શ્રેષ્ઠ ભાગ આજે લઈશું. તે પછીથી પૂજ્ય ગુરુદેવ કળશ 202 ઉપર વિસ્તાર કરશે. તો પહેલા આપણે કળશ 202 વાંચનમાં લઈએ છીએ. સમયસારમાં કળશ 201 પછીથી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને કળશ 202ની રચના કરી છે અને 201 કળશના અનુસંધાનમાં જ 202નો ઉપોદ્ઘાત છે. એટલે કહે છે કે જે પુરુષો આવો વસ્તુ સ્વભાવનો નિયમ જાણતા નથી, એટલે જે 201 કળશની અંદર વાત આવી એ પ્રમાણે, તો જે પુરુષો આવો વસ્તુ સ્વભાવનો નિયમ જાણતા નથી તેઓ અજ્ઞાની થયા થકા કર્મને કરે છે. એ રીતે ભાવ કર્મનો કરતા અજ્ઞાનથી ચેતન જ થાય છે. ભાવ કર્મનો કરતા ચેતન થાય છે, પણ તે અજ્ઞાનથી થાય છે. અને આવા અર્થનું અને આગળની ગાથાઓની સૂચના રૂપ કાવ્ય એટલે કે કળશ 202 કહે છે. તો કળશ 202 એના શ્લોકાર્થમાં કહે છે, આચાર્ય દેવ ખેદપૂર્વક કહે છે કે અરે રે, જેઓ આ વસ્તુ સ્વભાવના નિયમને જાણતા નથી તેઓ બિચારા જેમનું તેજ અજ્ઞાનમાં ડૂબી ગયું છે એવા. તેજ એટલે શું? પુરુષાર્થ રૂપ પરાક્રમ રૂપ તેજ. એવું તેજ અજ્ઞાનમાં ડૂબી ગયું છે એવા કર્મને કરે છે. તેથી ભાવ કર્મનો કરતા ચેતન જ પોતે થાય છે, અન્ય કોઈ નહીં. અને ભાવાર્થમાં કહે છે કે વસ્તુના સ્વરૂપના નિયમને નહીં જાણતો હોવાથી પરદ્રવ્યનો કરતા થતો અજ્ઞાની મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ પોતે જ અજ્ઞાન ભાવે પરિણમે છે. એ રીતે પોતાના ભાવ કર્મનો કરતા અજ્ઞાની પોતે જ છે, અન્ય નથી. કળશ અમૃતમાં પંડિત રાજમલજીએ ખંડાનવાઈ સહિત અર્થ જે કર્યો છે તેમાં કહે છે કે દુઃખની સાથે કહે છે કે એવો જે મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ રાશિ, ઘણા જીવ છે મિથ્યાદ્રષ્ટિ, એટલે એવો જે મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ રાશિ તે મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ અશુદ્ધ પરિણતિ કરે છે. કેવો છે? મિથ્યાત્વ રૂપ ભાવના કારણે આચ્છાદવામાં આવ્યો છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રકાશ જેનો એવો છે. એ મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ રાશિ બધા જીવો કેવા છે? તો કે એમનો શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રકાશ મિથ્યાત્વ રૂપ ભાવના વડે આચ્છાદવામાં આવ્યો છે, એટલે કે મિથ્યાત્વ સહિત છે. મિથ્યાત્વ રૂપ ભાવના કારણે
આચ્છાદવામાં આવ્યો છે શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રકાશ, જેનો એવો એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ રાશિ છે. કારણ કે જે જીવ દ્રવ્ય જ્ઞાનાવરણ આદિ પૂતગળ પિંડનું કરતા નથી, એવા વસ્તુ સ્વભાવને સ્વાનુભવ પ્રત્યક્ષપણે અનુભવતો નથી. એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ, જેનો ચૈતન્ય પ્રકાશ મિથ્યાત્વથી આચ્છાદિત થયો છે, તો એનું કારણ સમજાવતા કહે છે કે જે ખરેખર જ્ઞાનાવરણ આદિ પૂતગળ પિંડ એટલે એવા દ્રવ્ય કર્મ એનો કરતા જીવ દ્રવ્ય નથી, જીવ એનું કરતા નથી. એવા વસ્તુ સ્વભાવને સ્વાનુભવ પ્રત્યક્ષપણે અનુભવતા નથી એ જીવો, માટે એમનો ચૈતન્ય પ્રકાશ આચ્છાદિત થયો છે. અને એને માટે આચાર્ય ભગવાને દુઃખપૂર્વક આ વાત કરી છે. ભાવાર્થ આમ છે કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ રાશિ શુદ્ધ સ્વરૂપના અનુભવથી ભ્રષ્ટ છે, શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ નથી, તેથી પર્યાયરત છે. તેથી પર્યાયરત છે એટલે પર્યાયની જ દ્રષ્ટિ છે. તેથી મિથ્યાત્વ રાગ દ્વેષ અશુદ્ધ પરિણામ રૂપ પરિણમે છે. શુદ્ધ આત્મતત્વની દ્રષ્ટિ નથી, પર્યાય દ્રષ્ટિ છે. તેથી મિથ્યાત્વ રાગ દ્વેષ જે અનાદિના ચાલ્યા આવે છે એવા પરિણામ એ કરે છે. મિથ્યાત્વ રાગ દ્વેષ અશુદ્ધ પરિણામ રૂપ એ પરિણમે છે. તે કારણથી મિથ્યાત્વ રાગ દ્વેષ અશુદ્ધ ચેતના રૂપ પરિણામનું વ્યાપક રૂપ પરિણમે છે એવું જીવ દ્રવ્ય પોતે કરતા થાય છે. એટલે પોતે કરતા થાય છે તો ભાવ કર્મનો કરતા થાય છે, દ્રવ્ય કર્મ તો કરતા થતો નથી. અને એવો પોતે જ પરિણમી અને એવા ભાવે થાય છે તો એ પોતે કરતા થાય છે, એમાં પૂતગલ કર્મ કરતા થતું નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોતો થકો જેવા અશુદ્ધ ભાવ રૂપે પરિણમે છે તેવા ભાવોનો કરતા થાય છે એવો સિદ્ધાંત છે. તો એ રીતે આ કળશ 202 છે. કળશ 201 સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં કેટલોક ભાગ કર્યો છે, શેષ ભાગ આજે પૂજ્ય ગુરુદેવ લેશે તો સહેજ એનું પુનરાવર્તન કરીએ છીએ. 201 ની અંદર એ વાત ચાલી રહી છે કે જીવ દ્રવ્ય ચેતન સ્વરૂપ, પૂતગળ દ્રવ્ય અચેતન સ્વરૂપ, એમ બે વસ્તુ જુદી છે. જીવ દ્રવ્ય ચેતન સ્વરૂપ છે અને પૂતગળ દ્રવ્ય અચેતન સ્વરૂપ છે. તો એવો ભેદ અનુભવતા જીવ દ્રવ્ય કરતા પૂતગળ પિંડ કર્મ એવો વ્યવહાર સર્વથા નથી. પોતે ચેતન અને પૂતગળ દ્રવ્ય જે છે તે અચેતન છે. અને જ્યારે એવું અનુભવમાં આવે છે, એવું ભેદ જ્ઞાન થાય છે, તો પછી જીવ દ્રવ્ય સર્વથા આ પૂતગળ અકર્તા થાય છે. એટલે પછી એમાં જે પૂતગળ દ્રવ્ય કર્મ છે એનો પણ એ સર્વથા અકર્તા છે. એટલે એવો વ્યવહાર સર્વથા નથી. એને તો અહીંયા એમ કહ્યું કે એવો વ્યવહાર સર્વથા નથી. તો કેવો છે? તો કે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે જે જીવો તે જીવ સ્વરૂપને કરતા નથી એવું અનુભવો આસ્વાદવો. એટલે આવો નથી તો પછી અહીંયા એમ કે છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવો તમે એવું જ અનુભવો, એવું જ આસ્વાદો કે જીવ સ્વરૂપ ને આ જીવ જેવો છે તે કરતા નથી, એનું કોઈનું કરતા પણ નથી એવું અનુભવો, એવું આસ્વાદો. શા કારણથી? કારણ કે શુદ્ધ જીવ દ્રવ્યનું પૂતગળ દ્રવ્ય સાથે દ્રવ્યરૂપ, ગુણરૂપ અથવા પર્યાય રૂપ એકત્વપણું અતીત ભૂતકાળમાં નહોતું, અનાગત ભવિષ્યકાળમાં પણ નહીં હોય અને વર્તમાનમાં પણ નથી. તો ભાવાર્થ આમ છે કે અનાદિ નિધન જે દ્રવ્ય જેવું છે તે તેવું જ છે, અન્ય દ્રવ્ય સાથે મળતું નથી. તેથી જીવ દ્રવ્ય પૂતગલ કર્મનું અકર્તા છે. તો આ પૂતગલ કર્મનું અકર્તા છે, પૂતગલના કોઈ પરિણામ જીવ કરતો નથી. એ વાત અહીંયા લઈ અને પછી
હવે ભાવ કર્મો કરતા છે એની વાત 202 માં કરી, તો આપણે 201 નો શેષ ભાગ પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ અને તે પછીથી 201 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ વિસ્તાર કરશે. કળશ પ્રવચન ભાગ 6, એના પાના નંબર 194, પ્રવચન નંબર 225. यहाँ સુધી આવ્યું છે. ફરીને થોડું લઈ દઉં. તત વસ્તુ ભેદે કર્તું કર્મ ઘટતા ન અસ્તિ. સિદ્ધાંત વસ્તુમાં ભિન્નતા છે ત્યાં કરતા કર્મ પણ ઘટતું है नहीं. भिन्न वस्तु में भिन्न वस्तु दो में करता कर्म पण करता ना उसका कार्य एक घटता है नहीं, क्योंकि दरेक पदार्थ स्वतंत्र अपनी पर्याय का परिणमन करने वाला उसको दूसरा उसका कार्य करे ऐसी वस्तु की स्थिति नहीं, वस्तु का नियम ही नहीं. ये कहा ना, जीव द्रव्य चेतन स्वरूप, उद्गल द्रव्य चेतन स्वरूप, ऐसे भेद को अनुभवते हुए, ऐसा भिन्न को जानते न अनुभवते हुए, कर्तु कर्म घटना जीव द्रव्य कर्ता न पुद्गल कर्म ऐसा व्यवहार सर्वथा नहीं, व्यवहार सर्वथा नहीं. क्योंकि परनिहारी संबंध कया ने व्यवहार थी गया, करता आत्मा न परद्रव्य की पर्याय कार्य, तो ये तो व्यवहार थी गया, परद्रव्य थी गया ना, એટલે व्यवहार ही सर्वथा नहीं. समझ में आया? व्यवहार ही नहीं, पर नहीं व्यवहार क्या से आया? જેની વાત બાપુ, અનંત પદાર્થ પોતાની સ્વયં પર્યાયપણે ષટકારકપણે વર્તમાન पर्याय प्रणमती है. पर्याय षटकारपणे प्रणमती हो, चाहे तो विकार हो कि चाहे तो अविकार हो. પણ આ વિકારનો તો નિષેધ કરે છે સ્વભાવની અપેક્ષાએ. પણ જગતમાં સ્વયં દ્રવ્ય और उसकी वर्तमान पर्याय ये षटकारक रूपे विकारना के अविकारना षटकार रूपे प्रणमन स्वतंत्र ये समय स्थिति है. एमा दूसरा उसको करे, उसका द्रव्य ने गुण भी करे नहीं दूसरा करे, ऐसे कहां से आया इनके? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पर्याय एक समय की पण सत है या अहेतु है. उसके कोई हेतु है, उसका हेतु क्या? चाहे तो विकृत अवस्था हो कि चाहे तो अविकृत हो, ये अपना षटकार करता कर्म करण संप्रदान पादान अधिकरण उससे प्रणमते हैं. ये वस्तु का स्वरूप है, तो इस सर्वथा व्यवहार है ही नहीं. पर का करे कुछ कर्म का है तो कर्म की बात लेना है, पर कर्म की जो नजीक में संबंध है उसका भी करता नहीं, तो दूर क्षेत्र रहेला चीज का तो आत्मा ही इसकी पर्याय का करता है नहीं. कैसा है? मुनिय जना तशकतुम पसंदो. यहाँ जय मुनि जना नो એટલો લીધો છે, સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ એમ લીધું છે. અને આપણે સમયસારમાં મુનિ એટલે સંતો સાચા મુનિ અને જનો એટલે વિષ્ણુ કરતા માનને વાળા જન, બે અર્થ થયા છે. समझ में आया? मुनया जन, जना मुनि अने जन જે લૌકિક વિષ્ણુ કરતા માનते हैं, ये जीवों पर परद्रव्य ना करता न मानो. समझ में आया?
આને એક અર્થ કર્યો મુનય જનો, જયચંદ પંડિતે બે અર્થ કર્યા છે, અને છે બે અર્થ બરાબર છે, કારણ કે ચાલ્યો આવે છે ને વિષ્ણુ કર્તાનું. सम्यक दृष्टि है जो जीव, ये जीव स्वरूप को करता नहीं है. कर्म का करता तो नहीं है, पर निश्चय से तो राग का करता भी नहीं है. ये माटी पहले कहूं था ने पहला कि जीव द्रव्य तो चेतन स्वरूप है, ऐसा कहा था. राग रूप है कहते रूप नहीं, तो चैतन्य स्वरूप है. विनायक स्वभाव है. ये विनायक भाव करता कैसे करे? तो अकर्ता पसंतु, अकर्ता पसंतु ની व्याख्या करता नहीं ऐसा अनुभव आस्वादो. पर का राग का भी करता नहीं, ये तो चैतन्य स्वरूप है. ऐसी दृष्टिवंत ये जीवो अकर्ता देखकर अपना पसंतु, अपना स्वरूप अनुभव. समझ में आया? सूक्ष्म बात है भगवान, बात तो वो ये विषय શું થાય ना. अकर्ता पसंतु ની व्याख्या कि राग का भी अकर्ता देखो, तो उसका अर्थ है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका आस्वाद लो. समझ में आया? आप कर चले भी आए अपने आप थोड़ा भाई चंद भाई अपनी शुरुआत की समय दृष्टि जी अनुभव अकर्ता देखो, पसंद तो देखो, अर्थात राग का भी करता नहीं अकर्ता देखो, अर्थात आत्मा का राग का करता है, तो आत्मा का आनंद का आस्वाद लो. समझ में आया? थोड़ा शब्दों में तो बहुत भजन भगवान संतों ની વાણી એટલી સૂક્ષ્મ છે, अध्यात्म बात. कि जारे राग का अकर्ता देखो, तो उसका अर्थ हो कि अपनी दृष्टि में स्वभाव आया, तो स्वभाव की दृष्टि से अपना अकर्तापना का अनुभव करो, अर्थात आनंद का. राग है या आकुलता था, ये आकुलता को अकर्ता देखो, क्या उसका अर्थ का आनंद का वेदन करो. सुन भाई, आई बात है. दुनिया कहीं भाई चर्चा वादे पार पड़े नहीं. ये तो कल कहा था ना, वो सुमेशार में आया न, स्वयं सो ने परस में आई वाद विवाद करीश ने प्रभु मार्ग एवो છે નાથ કે ક્યાંય શબ્દ પાર પડે એવું નથી. સ્વસમય ને પર સુમેશા છે, વાદ વયન વચન વિવાદ કરીશ નહીં. भगवान आत्मा जारे चेतन स्वरूप है, तो राग का अकर्ता जब देखे तो उसको अर्थ ऐसा हुआ अपना आनंद का कर्ता हो और कर्ता का कर्म आनंद हो. ये भी उपचार से कहने में आया. उसमें भेद पड़ा नहीं था ना कि आत्मा कर्ता आनंद का स्वाद लेने वाला कर्म. ये पहले आगे आए, पहला क्लास में आ गया है, उपचार से करता है, पहला में आ गया है. अपनी परंती का कर्ता के उपचार से है, भेद पड़ा ने ये पहला आ गया उसमें. આવી વાતો છે. તો એકલો સદગુણ ભગવાન પરમાનંદ સ્વરૂપી પ્રભુ. ये चीज स्वाभाविक त्रिकाली आनंद चीज ही विकृत अवस्था को कैसे करे. और विकृत अवस्था को न करे तो ये आनंद अवस्था प्रभु पर ऊपर तो दृष्टि रही नहीं.
राग का दया दान व्रत आदि का भी करता नहीं, तो उसके ऊपर से दृष्टि उठ गई, मैं रचने वाला हूं, ये दृष्टि उठ गई तो दृष्टि दृढ़ स्वभाव पर आई। भगवान तो चैतन्य आनंद स्वरूप है प्रभु, तो आनंद का अनुभव करो। श्रीलाल जी सूक्ष्म है पण प्रभु मार्ग तो आ है। આમાં કોઈ માટે નાના મોટા શરીરની કે નાના મોટા આયુષની કઈ જરૂર નથી है। કેમ ભણતર बहुत है तो आप समझ में आ रहे क्या सब उछा भाई ऐसी कोई चीज नहीं आ तो भगवान હવે શિવભૂતિ અણગાર नहीं शिवभूति ने महारोष में महातुष इतना याद नहीं रहते थे, गुरु ने इतना कहा उसको अर्थ वितराग तात्पर्य। प्रभु कोई प्रत्यय रोष नहीं, कोई प्रत्यय संतोष नहीं, राग नहीं, माँ रोष माँ तुष, इतना शब्द याद न रहा पण उसका तात्पर्य वितरागता था, ये अंदर में भाव भाषण हो गया, समझ में आया। तो ये शब्द इतना याद नहीं रहा। और एक स्त्री उड़दनी दाल ने शू कहवाय छिलका हमारे यहाँ આપણે શું કહે છે દાળ નહીં छड़ी दाल कहते हैं हमारे गुजरात, छड़ी छड़ी धोड़ी छिलका निकल के थोड़ी सफेद रहती है ना तो छड़ी दाल कहते हैं। तो एक बाई ऐसी ने पोतरा ऊपर का निकाल देते ना, शू करो सो बेनी कोई पूछो क्या करते हो बा के छिलका निकालते हैं रद को भिन्न करते हैं। इतना सुना था तो भान तो भास था, सोना अंदर में विकल्प था, छिलका थोड़ा छिलका। मैं तो शुद्ध चैतन्य घन भगवान अंदर में उतर गई, केवलियन हो गया। पर जिसने भान नहीं उसको तो पहले अभ्यास करना पड़ेगा नहीं, जिसको तो सल बहुत है, विपरीत सल बहुत है, इतना प्रमाण में उसको अभ्यास करके विपरीत सल निकालना पड़ेगा नहीं, उसको तो कोई विपरीत सल था नहीं, समझ में आया। विपरीत असंख्य प्रकार का मिथ्यात ने ग्रहित मिथ्यात ने ग्रहित मिथ्यात असंख्य प्रकार का है, सूक्ष्म अनंत प्रकार का है। तो ये क्या क्या पकड़ है उसका छोड़ने को ज्ञान तो करना पड़ेगा ना। जिसनो छूट गया है उसको तो खलास हो गया। समझ में आया। अनादि काल से लोग तो क्या चीज है तो अभ्यास अंतर किया ही नहीं, तो उसको स्वलक्ष्य शास्त्र का अभ्यास करना ही पर्वतनुसार में चला है। पर्वतनुसार बीजो अधिकार शुरू करता है, अधिकार शुरू करता प्राणु गाथा बाणु गाथा ज्ञान अधिकार, त्राणु से ज्ञेय अधिकार, तो ज्ञेय अधिकार न अभ्यास करो, पण स्वलक्ष्य करो ऐसा कहा है, कहा नहीं तुम भाई। और ये ज्ञेय अधिकार में ऐसा लिया कि ज्ञेय का स्वरूप ऐसा है जो कि ज्ञेय अधिकार कहा, पंचैसन आचार्य तो उसको संकित का अधिकार कहा है। पहला ज्ञान का अधिकार मानो पीछे 108 संगीत का अधिकार, पीछे चरण योगी में 3 लिया है। तो मारे दूसरा कहना था कि ये ज्ञेय का अधिकार में ऐसा लिया 101 और 2 कि ज्ञेय का स्वरूप ही ऐसा है कि जिस क्षण में जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है उसकी होगी, ऐसा ज्ञेय का स्वरूप है। कोई दूसरे से उत्पन्न हो, द्रव्यगुण से नहीं, पर से नहीं। ये ज्ञेय अधिकार है અને गर्भित रीते संकित का अधिकार है। तो जैसनाचार्य स्पष्ट कर दिया है कि संकित का अधिकार है, क्योंकि जैसी वस्तु है ऐसा उसकी
ध्यान में ख्याल में प्रतीत आ जाए तो सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो ज्ञेय अधिकार में ऐसा कि ज्ञेय ऐसा है, ये ऐसा अपने से ऐसा है कि उत्पाद के काल में उत्पाद, व्यय के काल में व्यय, ध्रुव के उत्पाद में व्यय की अपेक्षा नहीं, व्यय में उत्पाद की अपेक्षा नहीं, उत्पाद में ध्रुव की अपेक्षा नहीं। ये ज्ञेय का ऐसा स्वरूप है। हाँ हाँ, परनी अपेक्षा तो निकाल दिया। हाँ 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 हाँ, भगवान आप तो शांति निभाते प्रभु का। कोई उत्पाद होता है समय समय पर्याय में, ये अधिकार में, संकित का अधिकार में, जिस समय जो पर्याय जहाँ उत्पन्न होती है, ये उत्पाद को व्यय ने ध्रुव की अपेक्षा नहीं, पर की अपेक्षा तो नहीं। समझ में आया? एक बात 101 गाथा ही कहा ज्ञेय अधिकार, 102 मयम कहा जन्म क्षण। ये द्रव्यनी पर्याय नो जन्म उत्पत्ति नो काल है। કાલી વાત આવી છે ને ભાઈ, ઓલા 5 લબ્ધી એમાં એમને કાળ લબ્ધી લીધી છે। આપણે हाँ, आम 5 लब्धि में क्षोभम आते हैं, क्षोभम उसमें मैंने काल लब्धि लिया है। हमारे दूसरा कहना है काल लब्धि में वो है कि जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है उसको काल लब्धि है। स्वामी कार्तिक में ऐसा लिया है, स्वामी पाठ है कि काल लब्धि इसको कहिए कि जिस समय त्या उत्पन्न होने वाला छह द्रव्य पर्याय ते समय हो, ते समय आगे पीछे नहीं, पहला पीछे फेरफार नहीं, ये काल लब्धि कहने में आया। ये छह द्रव्य काल लब्धि है। स्वामी कार्तिक अमूल गाथा है, छह द्रव्य को काल लब्धि है। બે ગાથા છે, ખબર છે ને બધી છે, બધું વાંચાઈ ગયું તો व्याख्यान થઈ ગયા है तो 43 वर्ष हुआ सब बहुत हुआ। तो काल लब्धि ऐसे लिया है, समझ में आया? तो वो 5 लब्धि में वो सूक्ष्म लब्धि ने स्थान में काल लब्धि लिया है। तो आया था ना नियम सार में, तो त्याग एनो अर्थ कहना था कि जिसमें ये हो गए, पर वो पर्याय द्रव्य में नहीं है, ज्ञाति लेना है ना। 5-4 भाव है, पर वो भाव द्रव्य में नहीं है। समझ में आया? तो आई कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि जीव अकर्तुम पसंतो, ये राग का रचने वाला तुम नहीं, ऐसे देखो तो उसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी आनंद की पर्याय को वेदो। उसका कर्ता होकर एक आनंद की पर्याय कार्य तेरा बनाओ। आओ मार्ग से भगवान, परनी दया पाल सकते तो नहीं, परनी दया पाल सकते हैं, ये कार्य तो व्यवहार भी नहीं किया नहीं। परनी कारण की परनी दया तो परनी पर्याय, उसकी आत्मा क्यों पाल सके। पर पर की दया का भाव आया, उसका भी करता हो तो ये आत्मा का स्वभाव नहीं। समझ में आया? तो ऐसे आत्मा को राग का भी अकर्ता देखो। अर्थात भगवान आत्मा को आनंदमय ज्ञानमय देखो। है? ये आनंदमय ने ज्ञानमय देखने से तुम्हारी पर्याय में तेरे आनंद का स्वाद आएगा। समझ में आते हैं? तो संतों वाणी से प्रभु और तो अध्यात्मों वाणी नाथ, एक एक शब्द में अनंत आगम भरा है। एक एक गाथा में नहीं पण एक एक पद में क्या कहे, अनंत आगम श्रीमद कैसे ने
જ્ઞાનીના એક વાક્યમાં એક સુરમાં અનંત આગમ રહ્યા છે. કેટલી એમાં ગંભીરતા અને અપેક્ષિત વાતો કિતની હૈ એ જ્ઞાની જાણ સકે. જ્ઞાની પત્તો नहीं ત્યાં. समझ में आया? अनुभव किस कारण से? क्या कारण है? पर का करता देखना ना आत्मा का अनुभव करना. यत एक वस्तुनम अनंतरेण साधन है ना, साधन सकलोपी संबंधन निषिदेव. जिस कारण से एक वस्तु सुजीव द्रव्य का अनंतरेण पुद्गल द्रव्य के साथ में राग आदि के साथ लेना. समझ में आया? सकलोपी द्रव्य रूप गुण रूप पर्याय संबंध संबंधनी व्याख्या एक पण. समझ में आया? नहीं है एक पना अतीत अनागत वर्तमान काल में निभर जाए तो काल लिया था ना कि आत्मा और राग को तदात्म संबंध नहीं. ये कर्ता कर्म पहली गाथा में 69 कर्ता कर्म नहीं 69 पहली गाथा में संबंध है नहीं तदात्म. ज्ञान ने आनंद ने साथ ही तदात्म संबंध है भगवान ने, पर राग साथ तदात्म संबंध है नहीं. ऐसा लेगा ज्ञान है ना 69. ऐसे आई आत्मा में ये क्षणिक तो समझाने को कहते थे. नहीं तदात्मा कहीं तो खबर है. एक पर्याय है ना, एक पर्याय में तदात्मा है अज्ञानी हो, पर ये यहाँ लेना नहीं है. ત્યાં कर्ता कर्म की बात ત્યાં लेना नहीं है. ત્યાં तो तदात्म संबंध है ही नहीं. ऐसा कह दिया है. मूल संस्कृत है अमरचंद्र आचार्य की बात. समझ में आया है? संबंध सहयोग से संबंध किया. पाठ ऐसा दिया है. राग ने भगवान स्वभाव के साथ संयोग संबंध है, तदात्म संबंध है ही नहीं. ऐसा पाठ है. ये बात तो यहाँ तो बहुत बात चली है नहीं. पीछे तो खुलासा करने को क्या कि पर्याय जड़ में नहीं है. राग है तो अनित संयोग है, पर उसको परमार्थ है संयोग संबंध के दिया है. कथा करो 69 कहते हैं 70 में कम पहली सभा का था. कहते हैं कि तदात्म संबंध नहीं सर्व संबंध के जाने तो तदात्म संबंध निकल आ गया. 4 बोल तो कहा था कल. तदात्म संबंध नहीं, गुण गुणी भाव नहीं. गुणी आत्मा ने राग गुण उसका ऐसा है नहीं. व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प ये आत्मा का गुण ने आत्मा गुणी ऐसा है नहीं. सरस संबंध है ना, आ संबंध भी नहीं. तदात्म संबंध नहीं, गुण गुणी संबंध नहीं. 2 तीसरा लक्षण लक्षण संबंध नहीं कि राग लक्षण ने आत्मा लक्षण ऐसा परमार्थ संबंध नहीं. एम केम क्यों परमार्थ संबंध नहीं? ये 85 इकाई में ऐसा आया है. सुनवाई चाहे तो उत्पाद राग का हो, ये लक्षण कहा है, द्रव्य को लक्ष्य कहा है. सूक्ष्म बात है भाई थोड़ी. क्या तो 80 इकाई सिद्ध करना है. 50 इकाई है ना, तो 80 इकाई सिद्ध करना है. क्या पहले ऐसा लिया है कि उत्पाद वही लक्षण है, ध्रुव लक्ष्य है. तो उत्पाद वही राग आदि उत्पाद वो भी लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है. वो तो वस्तु की सिद्धि से करना ऐसा होता है, ऐसे सिद्ध करने को लिया है. बात समझ में आया?
एक बाजू ज्ञान लक्षण है न प्रभु लक्ष्य है, दूसरी बाजू 85 इकाई में अस्थि सिद्ध करने में ऐसा लिया है पहली शुरुआत में, पहली गाथाओं में, कि राग लक्षण है न आत्मा लक्ष्य है। आत्मा ने ज्ञान अस्थि सिद्ध करने એટલું હજી અનુભવ પછી। હા હા હા, 85 इकाई में उत्पाद હોય ને ધ્રુવ માં उत्पाद હોય, लक्षण तो उत्पाद હોય, राग आदि का उत्पाद ने वे ये पण लक्षण ने ध्रुव के लक्षण लिया है। बात आई बात नहीं, यहाँ लक्ष्य लक्षण संबंध में राग लक्षण में आत्मा लक्षण ऐसा है संबंध है नहीं। અહીં स्वभाव दृष्टि का वर्णन है और त्या वस्तु की स्थिति सिद्ध करने का वर्णन, बस कैसा है ऐसा समझ में आया। तो ये कहे लक्षण वाचक भाव, वाचक है राग और वाच है भगवान, ऐसा कोई संबंध है नहीं, हरी नहीं। वाचक ये आलापति में है, आलापति में संबंध नहीं है व्याख्या नहीं, वाचक नहीं, विशेष विशेषण नहीं। आत्मा विशेष और राग विशेषण उसका, अथवा आत्मा विशेष ने कर्म विशेषण उसका, ऐसा है नहीं। समझते आते विशेषण समझते, જેમ જ્ઞાન વિશેષણ है और आत्मा विशेष है, ये तो विशेषण है, पर कर्म विशेषण है और आत्मा विशेष है ऐसा है नहीं, और राग विशेषण है और आत्मा विशेष है ऐसा है नहीं। समझ में आया है? आगम ज्ञान भी विशेषण नहीं, आगम ज्ञान भी वास्तविक व्यवहार लक्षण में आया। कहते सवेर में कहा था हमारा कहा ने राग को लक्षण कहा ना, आत्मा को लक्षण की अपेक्षा का वस्तु की स्थिति की अपेक्षा आगम ज्ञान भी ज्ञान नहीं। ये कहा ने बंद अधिकार में कि आचार आदि का ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा है ત્યાં भाई बंद अधिकार में। श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 बोल की व्याख्या है, उसमें क्या किया अभी आचार में और ज्ञान की व्याख्या। तो आचार आदि का ज्ञान को शब्द ज्ञान कहा है, व्यवहार पर ये शब्द ज्ञान है, चाहे तो शास्त्र का ज्ञान को शब्द ज्ञान कहा है, ये माटे निषेध है एम कहा है बंद अधिकार में। नव तत्व की श्रद्धा समझ में आया, ये भी पर है। हमारे कहीं शू कहूँ शब्द ज्ञान एम श्रद्धा को व्यवहार श्रद्धा को नव तत्व की श्रद्धा ऐसा भी है, ये श्रद्धा नव तत्व है। जैम ज्ञान आचार शास्त्र का शब्द ज्ञान है, ऐसे नव तत्व की श्रद्धा ये नव तत्व ऐसा क्या है, ये आत्मा नहीं। त्या लिया है, 3 बोल लिया है, बंद अधिकार में आया है। हाँ पण भेद नहीं, अहिया वो बताना है ना कि तेरी चीज नहीं, तेरी साथी गुण गुणी विषय विशेषण संबंध उसके साथ है ही नहीं। हाँ। तीजी बात, पहले तो ऐसा कहा कि आचार्य का ज्ञान को शब्द ज्ञान कहते हैं, ये आत्मज्ञान नहीं। नव तत्व की श्रद्धा को नव तत्व कहते हैं, नव तत्व की श्रद्धा को नव तत्व कहते हैं। जब आचार्य का ज्ञान को शब्द ज्ञान कहते हैं, नव का भेद वाली श्रद्धा को नव तत्व कहते हैं, आत्मा नहीं। और छकाई की दया क्या लिया है, पंचमहावर्त में एक लिया है, क्योंकि एक में 4 आ जाता है। छकाई की दया चारित्र कौन व्यवहार के छकाय जीव एम लिया है, व्यवहार चारित्र कौन के छकाय जीव एम लिया है। अरे
क्योंकि उसमें वो निमित्त है, तो निमित्त का आश्रय है, तो उसको छकाई कह दिया है। व्यवहार चारित्र जो राग की मंदता है, व्यवहार चारित्र ही छकाई जीव है एम कहा है। छकाई का लक्ष्य है ना वो, तो उसको छकाई कह दिया है। माटे से ये एम कह दिया है। શું થાય ભાઈ, માર્ગ તો આમ છે, ભગવાન શ્રીમુખે નીકળેલી વાણી છે। समझ में आया? तो ત્યાં જેમ એમ કહે ને यहाँ ये लेना कि ये संबंध नहीं, विशेष विशेषण संबंध ही नहीं। राग विशेषण है ना, आत्मा विशेष है, ऐसा संबंध नहीं। આવી વાત છે। હવે 85 કઈમાં એમ કે ઉત્પાદ હોય છે વિશેષણ, વિશેષણ છે ને, અને ધ્રુવ વિશેષ है। यहाँ तो अस्थि सिद्ध करना इतनी बात है, यहाँ तो स्वभाव की दृष्टि सिद्ध करके वो निकाल देना है वस्तु को। दृष्टि में से उसका आश्रय निकालना है। समझ में आया? ये बोल तो आया था, एक आ रह गया था स्व स्वामी संबंध, ये कल नहीं आया था। 47 शक्ति है ना समय सार में, उसमें 47 कहते हैं 4-7, उसकी आखिर की शक्ति स्व स्वामी संबंध। तो स्व स्वामी संबंध किसके साथ है कि अपना द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध ने पर्याय शुद्ध, ये स्व ने उसका ही स्वामी, पर राग उसका स्व न आत्मा स्वामी ऐसा है नहीं अंदर। हाँ, व्यवहार रत्नोत्तरई स्व ने अपना आत्मा उसका स्वामी है नहीं। समझ में आया? तो वो यहाँ कहा स्वस्वामी राग स्व ने आत्मा स्वामी, ऐसा संबंध राग साथ है। यहाँ स्थूल रूप से कथन किया है, कर्म स्व न आत्मा स्वामी ऐसा संबंध है नहीं, तो उसमें से निकाल कर किया कि राग स्व न आत्मा स्वामी ये भी संबंध है नहीं। ये पीछे अभी कहेगा, थोड़ा स्पष्ट करेगा, पीछे सुनो 102 में। समझ में आया? कोई की कहा तो कर्मनी साथी बात है, तो राग साथी बात क्या आया उसमें है कि तो कर्म साथ बात करते हैं, राग साथ बात आ गई उसमें। समझ में आया? सकलोपी द्रव्य थी, गुण थी ने पर्याय थी, एक पना का अतीत अनागत वर्तमान काल में वर्जा है, त्रणेय काल। त्रिकाल में आत्मा ने कर्म के साथ काई संबंध नहीं। तो हाँ, ऐसा लगाते हैं कर्म उदय आवे એટલે आत्मा को विकार करना ही पड़े। ये निमित्त होकर आता है ऐसे कहते हैं कितना, खबर है कौन कहते हैं हमने, ये निमित्त होकर आता है। नो कर्म निमित्त है, ये तो बना तो बनाओ, पर कर्म तो निमित्त होकर ही आता है कि उदय आवे એટલે विकार करना ही पड़े, ऐसी बात है नहीं। है डिग्री तो डिग्री છે ને, कहता थे ना कि जितना उदय आवे इतना डिग्री तो डिग्री विकार करना पड़े, खबर है ना। तो एम नहीं आई तो नकार करते हैं, पर द्रव्य ने अपना द्रव्य साथ में कोई स्वस्वामी संबंध है ही नहीं। ये भिन्न चीज है, एक बीजा में अंतन अभाव है। कर्म की उदय पर्याय में, राग की पर्याय में, दो में अत्यंत अभाव है। અને निश्चय में तो राग की पर्याय में, स्वभाव की पर्याय में भी अत्यंत अभाव है। समझ में आया? जीव 4 संबंध आते हैं ना, प्रथम भाव है, प्राग भाव, प्रथम भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। वो अत्यंत भाव में राग का अभाव नहीं आता, 4 में आ ना आवे। तो अध्यात्म का अभाव,
अध्यात्म की दृष्टि में 4 व्यवहार है आप न्याय ग्रंथों में, प्राग भाव, पूर्व प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव અને અત્યંત ભાવ. ये અત્યंत भाव पर ने स्व ની વચ્ચે का भाव है અને स्वभाव की स्थिति में राग का न स्वभाव बीच में अत्यंत भाव है. ये 4 बोल में ना आए. समझ में आया? आता है ना वो 33 का समझ करता कर्म 33 कि राग का स्वामी कर्म है. अच्छा हाँ 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 है એમાં ને એમાં લખ્યું છે કે પછી આત્મા એનો ये तो आत्मा स्वामी अज्ञान पड़े से अज्ञान पड़े स्वामी होता ही हूँ. 4 2 बोले एक पहला बोल की पीछे 2 बोले चेतना परिणाम की बातें है ना उसमें भाई 2 बोलावे છે ખબર છે ને. પહેલો એ બોલાવે પછી 2 બોલ બીજા ચેતનાના પરિણામ છે એમ આવે છે. ત્યાં તો એની વસ્તુની સ્થિતિ કહેતા પેલો સ્વામી પરને કહી દીધું પણ બન્યું છે ચેતન પોતે જ પરિણમોચન રાગે એ બાત દેખાય ચેતના પરિણામ ત્યાં કહેવાય છે. પણ એ ચાલતો અધિકાર હોય તો વધારે 3 બોલ છે ખબર છે ને. હા હા 73 ગાથા કરતા કર્મ. હા એ સર્વ સંબંધનો અર્થ શું કર્યો? એક પણ સંબંધનો અર્થ આ કર્યો. हाँ 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 समझ में आया है ने. हमें पुस्तक है कि नहीं? तिथि पुस्तक हमें रखी नहीं तो नीचे पुस्तक ने ऊपर बैसવું એ બરાબર ઠીક ન કહેવાય. પણ એ પ્રશ્ન હો ગયા હતા પણ બાપુ એને વધારે સમજવા માટે વિનય છે એમાં એ હાટું નીચે છે. એ પુસ્તકનો અવગલો માટે નથી, વધારે શબ્દનો ક્યાં અર્થ એમાં બહુ માન આવે એને એ માટે આમ છે. સમજમાં આવ્યા? નહીં તો નીચે પુસ્તક ઉપર બધી ખબર બાપુ ખબર નથી કે પણ વાંચનારને વધારે વિનય ત્યારે એને પ્રગટે. એ શબ્દનો આવો ભાવ એવો એને ખ્યાલમાં આવતા એને સીધો બહુ માન આવે છે. એ વિનય ખરો છે. હા હા છે ભાઈ બાકી શું થાય. એ હમણાં સાધુ આવ્યાથી એમ કહેતા હતા કે પુસ્તક નીચે મૂકે તો મેં નહીં સાંભળવાય કે પણ આવતા ના ભાવ નથી ગયા ને. હવે એને શું કેવું કઈ અપેક્ષા છે બાપા? સમજ में आया? હે રહી જાય બાપુ અદાની છે અંધારું છે. આ ચીજનું એક એક બોલમાં ક્યાં ક્યાં પૃથકતા છે એમ કેમ વિવેક છે એને સમજવું કઠણ છે ભાઈ. हाँ हाँ एक पना का अतीत अनादिशय भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि निधन એટલે આદિ અનિધન એમ. आदि नहीं निधन એટલે अंत नहीं. अनादि निधन में ऐसा शब्द निकालना. अनादि એટલે आदि नहीं, निधन એટલે नाश नहीं. निधन अर्थ अंत થાય नाश. अनादि निधन जो द्रव्य जैसा है वो वैसा ही है. परनी का साथे कोई संबंध है ही नहीं. અને દ્રવ્ય પણ जैसा है वैसा ही है. ખરેખર તો દ્રવ્ય ને પણ રાગ के साथ कहीं संबंध है. थोड़ू पण सत्य होना चाहिए. मोटी बातों लांबी लांबी करे सच निकले नहीं. ये कई वस्तु कहवाय प्रभु तो परमात्मा नो मार्ग है वितराग नो. अनादि निधन अन्य द्रव्य के साथ नहीं मिलता. इसलिए जीव द्रव्य पुद्गल कर्म क्या करता है. क्या पुद्गल का व्याख्या की है तो हमें स्पष्ट करने को राग द्वेष की व्याख्या करते हैं. हरे गाथा में मुझ तो जहाँ पुद्गल को कहा
पर पुद्गल को कर्ता जो होता है ये राग द्वेष का कर्ता होता है, यही पुद्गल को कर्ता मानते हैं। समझ में आया? पर राग द्वेष को कर्ता माने ये पुद्गल का कर्ता निमित्त से मानते हैं। ये सिद्ध करवा हमें राग द्वेष नाखेगा। यहाँ एकला कर्म लिया है तो हमें राग द्वेष नाखे भाव नाखे। 202 ये तो स्वभाव नियमं कलयन्ति नियम अज्ञान अग्नमसो बतते वराका। ये शब्द में भूल है छापा वारका છે અહીંયા ભૂલ છે વારકા કહ્યું વારકા ન જોઈએ વરાકા જોઈએ हिंदी में बराबर पेड़ से आम पेड़ से वराका જોઈએ राका भिखारी वराका नो स्थित होता है। अर्थ गया છે समयसार में जयचंद पंडित कुर्वन्ति कर्म तथैव हि भावकं जोयो और भावकं लिया कर्ता स्वयं भवति चेतन एव न अन्य भक्ति वराका कर्म कुर्वन्ति दुख के साथ कहते हैं आचार कैसे है अरे मैं शू कहिए दुख के साथ में कहिए से खेद होता है कहने में इनके कि ऐसी जो वराका એટલે राका भिखारी अपनी चैतन लक्ष्मी की खबर नहीं। भगवान भग नाम आनंद नादी लक्ष्मी का स्वरूप जिसका है इसकी जिसकी खबर नहीं, ये राग का भिखारी करता होता है। व्यवहार रत्न त्रय का भी भिखारी राका करता होता है, हम कहते हैं। समझ में आया? इसको अर्थ ऐसा लिया कि मीठा दृष्टि जीव राशि राका वराका एक मीठा दृष्टि जीव राशि ऐसा अर्थ नहीं लिया। समझ में आया? सुनो भाई, राग को अपना मानते हैं। ये कौन है राका? राका अर्थ मीठा दृष्टि जीव। गरीब मीठा दृष्टि गरीब निर्धन पैसा है इतनी बात यहाँ है नहीं। निर्धन स्वजन ढूंढना हो पासा बजवाड़ा के गरीब हो तो उसके साथ क्या सकते? लक्ष्मी नहीं है क्या? खरेखर तो लक्ष्मी पति कहते हैं, जड़ पति। तो निर्जराधिकार में तो ऐसा आया है सम्यक दृष्टि का था कि मैं जो राज का स्वामी हो जाऊं तो हूँ अजीव हो जाऊं। एक गाथा एक पाठ है। क्योंकि भैंस होते हैं, भैंस का स्वामी भैंस पाड़ा होता है। एम लक्ष्मी मेरी है, राग मेरा है, तो मैं जड़ हो जाऊं। निर्जाधिकार में है बहुत अधिकार। समय सार तो सार दिगंबर संतोनी वाणी तो गम दरिया फिर दरियो फिर। समझ में आया? ये वराका मीठा दृष्टि जीवराशि जयचंद पंडिते वराका नो तो राका કર્યા છે સમયસા અનોર્થ राका भिखारी अनेक है। तो आई वराका नोर्थ भिखारी न करते हैं, मीठा दृष्टि भिखारी राका है, फिर मीठा दृष्टि बनाया है। सदाचार धर्म पाले तो भिखारा है, राग है, विकल्प है। सदाचार दो प्रकार का है, एक राग सज्जनता राग की मनता का सदाचार और एक सत आनंद कंद का सत का आचार। ये सदाचार ही वास्तविक सदाचार है। व्यवहार रत्न त्रय का आचरण व्यवहार ये भी अनाचार है, ऐसा लिखा है। नियम सार में આવે છે।
है महावरत नहीं अनाचार में अनाचार किया है, अनाचार है, ઝેર है ને लो થઈ ગયો મને એ વિશેષ આવી ગયો એ રીતે કળશ 201 નો વિસ્તાર પૂરો થયો અને 202 કળશ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે. એનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.